Okay, so let's try to understand. So this is Wednesday closing, which we were discussing that day, and this is the Thursday closing, which is like yesterday price. Okay, what we're trying to do is we are trying to see what is the difference in call and put side prices. If you can understand this, half the battle for option will be done. So can anyone tell me, Vignesh, you had noted down the price. What was the price of 1950 100 C option? 22.45. 22.45. Okay. 450? 40.10, sir. 110. 400? 48.5. 48.5. 400. 350? 104. Are you sure 400 was 48? I think it should be more. Maybe 58.5 It or is 68. 68.5. 68. Right. It can't be 48 because strike is, this was his 104. Oh, yes, sir. Okay. And 300? I did not write 300. No problem. Forget it. इसको भूल जाते हैं. So 300 would be around $147. 47. Okay. 147. So this was the price on it. What is the PE price? You remember? Yes, 19500. sir, I will tell. Hmm? 84. 80? 4. 4. Okay. What is the price of 450? 53. 53. 31. 31. 17. 10.3. Okay. So this were Wednesday closing price. Okay. Now this, what is this? This is your spot price. So this is our strike. These are our strikes. So this is your strike, all this, huh? And this is your spot. Spot means ये वाला. Okay. So this is spot and this is strike, because trades can be taken on any of these strikes. Now I will tell you the exact price 19365. What will happen? Then we'll see how we can calculate. So 19 market is 19365. So this will become 0. Okay, let me calculate. So what formula did I told you for call? The call is what? Let me write it out. So CE price, okay, which minus strike. Intrinsic, only intrinsic, because price constitutes of two components, intrinsic and time. So C intrinsic, when you calculate intrinsic value of any C, it is always, what is the formula? Spot minus strike. Spot minus strike. Okay. Okay. And when we calculate the P price, so what is this? Strike minus spot. Okay. Okay. ये clear है सबको? What is strike? What is spot? Your spot will keep moving. Remember this. As the market will move, the spot will keep changing. But your strikes are always fixed. Matlab strikes. Strikes can become OTM, ITM, and ATM. So whenever your spot is equal to strike, for example, like when it is 19465, your round off, you have to round it off. So round it off will become 450. So which means on Wednesday, 19450 was at the money. But when the closing happened, 19350 is at the money. So some option is becoming in the money, some option is becoming out of the money. Clear na? So this will also keep changing. ये भी ध्यान लो. अब हमें क्या करना है? हमें फॉर्मूला लगाना है. So what formula will I apply here? This is equal to spot. What is spot? This minus strike. Which strike? This. What is the answer? Minus 135. What did I say? Whenever any negative number comes, what you have to do? 0. Make it 0. So this will be equal to 0. this minus this.
This will be equal to this minus this. Is this the closing price? You can make it all zero. Why? Because negative means zero. So this is your final closing price for call option. Correct? ऐसा ही था? Correct ना? और P का करना है तो क्या करना है? उल्टा. Strike. Which is the strike? This. Minus spot. What is the spot? This. This strike minus what is the spot? This. Strike minus spot. Strike minus spot. Strike minus spot. नेगेटिव को क्या करना है? माइनस को Negative. जीरो. आ गया. This is the final closing price, right, Vignesh? So without Yes, sir. asking, I told you what is the closing price. Correct. So why? Because when the option expires, okay, when the option expires, this will be the IV or what we call as it will expire only at intrinsic value. Value, right? And time value on expiry becomes zero for all the strikes. So every strike is having time value. See here. You can't apply the same formula on before expiry. वो आप नहीं लगा सकते. But you can get an idea. For example, if you apply this formula here also, what will you get? Spot. Spot minus strike, which means 465 minus 450. So what is the answer? 0. So why it is 22? Because 22 is the time value. क्योंकि एक दिन है, 1 day is there. So which means in 1 day what happened? 22 became 0 in 1 day. So if someone would have bought this option, उसका पैसा खत्म हो गया ना, कैपिटल गया खत्म. Someone would have bought this option 84. तो क्या हुआ? How much points did market move? Almost 100 points. Delta is 100, right? Between 2 days. 2 दिनों में मार्केट ने कितना मूवमेंट किया? 100 पॉइंट का मूवमेंट किया, राइट? बट डिड दिस मूव बाय 100 पॉइंट कि ओके 84 से डिड इट बिकम 184? नो, इट बिकेम ओनली 135. व्हाई? बिकॉज 50 पॉइंट थीटा भी तो गया ना उसका. बिकॉज ऑन दिस डे इफ यू कैलकुलेट द डिफरेंस, इट इज जस्ट 35. 500 minus 465, how much? 35. So 35 का ही उसका इंट्रिंसिक था, राइट? मार्केट वेंट बाय हाउ मच? 100 पॉइंट. तो 35 प्लस 100 इज 135. So which means जो 50 टाइम था वो इसमें भी खत्म हुआ. This option also lost its time value. So on one side it is losing time, on the other side it is gaining intrinsic. You got it? And on expiry day, maximum decay happens. Around 30 to 40% of जो decay होता है option का, that will happen on expiry day. So that is why expiry day na, like people who don't understand options, and if they do buying, they will lose like anything. So let's say if someone would have bought this option 104, क्या बचा उसके पास? 15 rupees. 90 rupees lost na? Correct? But who is making money in that case? Seller. Why? Because if anyone would have sold this option, pura 22 rupees in pocket. Anybody would have sold this option, pura 40 rupees in pocket. Anyone who would have sold 68.5, full money in pocket. तो अगर आप कॉल ऑप्शन देख रहे हो कि मार्केट नेगेटिव है, चलो कॉल बेचते हैं. All this option have expired. No. So seller knows how much money can be made. Buyer, so you can see now why buying is difficult. You can see in front of you. Even this buyer, although market went by 100 points, but still is making only 50 points. Market 100 points जा रहा है, उसको 50 मिल रहा है. तो अगर seller ने risk भी लिया तो seller is not losing 100 point. So when the market moves by so much point and the option, you know, increases by so much point, तो उन दोनों के बीच में correlation होता है, that is called as delta. So in option, we have multiple components which will impact the pricing.
So we call it option Greeks. Option Greeks. So we have delta, we have theta, we have gamma, we have vega. Vega is also called as intrinsic volatility, IV. So ये जो चार है ना एलिमेंट ऑप्शंस के, ये ऑप्शन के प्राइस को रियल टाइम में बहुत कंट्रोल करते हैं. ऑप्शंस में प्राइसेस विल कीप चेंजिंग. ओके, ऑप्शन ग्रीक्स. नाउ आईवी चेंज होते देखा मैंने उसमें ट्रेट्रॉन में, बाकी तो जीरो. इलेक्ट्रॉन में you will see all these terms, correct? You will see something happening, but you will not understand what is happening actually. So forget what retrons is. उसको भूल जाते हैं. In very simplistic term, I will explain you what are these Greeks and what happens actually. So have you understood what is theta? Theta is nothing but this is time value. Every option, right, for all the strike, you will be having option prices will comprise of two things. Now you know that, right? Intrinsic value and time value. Time value को theta बोलते हैं. Okay, and another thing you learned कि time value is bound to become zero when on expiry. When the contracts will expire, time value will become zero. Correct? ये आया समझ में या ये भी नहीं आ रहा समझ में? Yes or no? Yes बोल दो, no बोल दो तो पता चले. Yes. Don't say anything. How will I know? आया. आ रहा है ना? So Yes, sir. time value. हाँ, अब सवाल ये है कि ऑप्शन की लाइफ कितने दिन की होती है. इफ यू टॉक अबाउट वीकली एक्सपायरी, तो इन 1 week देयर आर 7 days, बट एक्चुअली मार्केट विल ट्रेड ओनली फॉर 5 days, इजंट इट? करेक्ट? मार्केट कितने दिन ट्रेड करेगा? 5 डे करेगा. तो 5 डे में से इफ यू टॉक अबाउट निफ्टी ऑप्शंस, लेट्स से निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी का डे 1 क्या होता है? फ्राइडे. लाइक टुडे वाज द फर्स्ट डे. What is day 2 for Nifty options? Monday. मतलब आप ऐसे देखो कि एक आदमी है, उसने जन्म लिया, ठीक है? जन्म जब बच्चा होता है, छोटा सा होता है, तो उसके अंदर में क्या रहता है? टाइम वैल्यू रहता है. डिपेंडिंग ऑन कब वो कब डेथ होगी, तब तक टाइम वैल्यू है, राइट? सो इफ यू डिवाइड ह्यूमन लाइफ 15 years और लेट्स से 20 years पे आप डिवाइड कर लो, ठीक है? 20 ये मतलब 20 years है. उसी तरह ऑप्शन को आप ऐसे देखो, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, राइट? तो इस तरह से ऑप्शन का जर्नी होगा. फ्राइडे को स्टार्ट हुआ, देन मूव टू मंडे, देन ट्यूसडे, देन Thursday. एंड फाइनली लास्ट डे आएगा थर्सडे. करेक्ट? सो तो ऑप्शन की जर्नी होती है 5 दिनों की, 5 days. करेक्ट? एंड इन 5 day देयर विल बी वन थिंग विच इज कांस्टेंट. जो बोलते हैं ना कि इंसान जब जन्म लेता है तो एक चीज तय हो जाती है. ये क्या तय होती है बताओ? व्हाट इज, क्या है? मरना है सबको, है ना? सबकी मृत्यु तय है. अब अगर हम बाकी चीजों को भूल जाए, एक्सीडेंट से मर सकता है, आप नेचुरल डेथ को लो, जहां पे आपका बॉडी डिके करेगा, ठीक है? तो आपका बॉडी अगर 100 year की ह्यूमन बींग्स की एक लाइफ ले लेते हैं, राइट, कि चलो मैक्सिमम 100 year, तो उसके बॉडी के सेल्स, ऑर्गेनिज्म तो डिके करने ना. द मोमेंट यू आर बॉर्न, डिके विल स्टार्ट और नॉट? यस और नो? इट विल स्टार्ट. ठीक है? अब बताओ कि जो फर्स्ट 20 years होता है उसको हम ऑप्शंस का डे 1 लेते हैं. तो इन फर्स्ट 20 years, लेट्स से अगर आप एक 100 साल के इंसान को देखो और आप एक 20 year के यंग लड़के को देखो, लड़की को देखो, तो आपको क्या लगता है कितना डिके हुआ 20 years में? फर्स्ट 20, हाउ मच डिके वुड यू से हैज हैपेंड आउट ऑफ इंटायर 100? इट्स नॉट लीनियर, इतना इक्वल परसेंटेज में नहीं होता है. तो यू कैन से ओनली 10%, इजंट इट? लिमिटेड. क्योंकि 10-20 साल में तो यूथ एकदम होता है ना, चरम पे होता है बिल्कुल. तो आपके बॉडी के सेल्स पिक पे है, इजंट इट? 15 साल तक, बट उसके बाद थोड़ा डिके भी होना शुरू हो जाता है, लाइक थोड़े बाल पक रहे हैं या थोड़ा सा हल्का हल्का, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग.
20 to 40 में कितना होता है? अब 40 साल के होने जा रहे हो आप, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा डिके हो जाता है। कुछ लोगों का तो आजकल 50% डिके 40 में हो जाता है, राइट? बट कुछ का नहीं भी होता है। सो लेट्स से 10% डिके फर्स्ट 20 ईयर में हुआ, तो इसके बाद 20% डिके पकड़ लेता है। उसके बाद जब 40 to 60 होगा तो कितना डिके होगा? अगेन 20 ले लो, या उससे मतलब मे बी वी कैन टेक 15 एंड देन 25, ऐसा ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 50% डिके हैज हैपेंड इन फर्स्ट 60 ईयर, ठीक है। अब आपकी हाफ लाइफ बची है 60 के बाद की। मैं ये पुराने जमाने का ले रहा हूँ थोड़ा सा, आजकल तो 100 ईयर इज टू लॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? तो मैक्सिमम 80 to 100 में क्या होगा? आप इमेजिन करो, यू सी समवन एट 80 एंड यू सी समवन एट 100, you will not even trigger because decay is very fast, isn't it? हर दिन rather हर वीक you will see कि ओके कल तक तो चलते फिरते थे, अब चल फिर भी नहीं पा रहे। होता है कि नहीं होता? आर यू कनेक्टिंग विथ व्हाट एग्जांपल आई एम गिविंग यू, isn't it? Yeah. So which means around 40% तो यहाँ पे निकल जाएगा, not 40 but let's say 30, ठीक है, Right. करेक्ट ना? और उसके पहले लाइक 60 to 80 इज ऑल्सो यू कैन से अगेन यू कैन से 25%, तो कितना हो गया? 50, 80, 90, 100, so I will take 10% है। so एक hypothetical ले रहा हूँ, don't take एकदम practically real, but just try to understand। same way when you look at option और उसके अंदर में एक थीटा component है, time value है, that is also expiry, but on Friday the time value will decrease only by 10%. You are getting it? But how does the price keep changing? It changes because of the movement of the market. तो निफ्टी अगर 100 पॉइंट जा रहा है तो उसके वजह से कॉल बढ़ेगा या पुट घटेगा, बट टाइम वैल्यू में ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, विच इज अराउंड 10% ऑन फ्राइडे डे 1। व्हेन द ट्रेड गोज टू मंडे, वहां पे भी अराउंड 10% ही होता है ऑप्शंस में, ठीक है, 10%। तो यानी 2 दिन हो गया ऑप्शंस का, तो कितना परसेंट डिके हुआ? 20 हुआ है। अभी अभी भी 80% टाइम वैल्यू है उसमें। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ऑप्शंस के प्राइस में 80% टाइम वैल्यू, बट व्हेन द ऑप्शन विल एंटर डे 3, that day 25% decay will happen in options. Day 4, which is 1 day before expiry, again 25%, and finally day 5, कयामत का दिन, 30%. You get it? So ये मैंने आपको दिया है। This is how theta works. People think okay time decay मतलब linear, अच्छा 10, 20%, 20%, 20%, 20%, ऐसे नहीं होता है। So if you know कि okay maximum decay will happen there, then which day do you think is good for selling, option selling? Wednesday, Thursday. Wednesday to Thursday. Why? Because 50% तो मलाई उधर ही मिलने वाला है आपको। If let's say you are selling some option on Wednesday and market does not give you much of a movement, वहीं पे रहेगा, तो you can collect entire theta component. And buyer जो ऑप्शन बाय करते हैं उनके लिए कौन सा डे बेस्ट है? Those who are in Friday, Monday. Friday and Monday. You got it now? So you have cracked the first thing about options. If you want to buy option, your best bet is the first 2 days, right? और एकदम लास्ट में थर्सडे को एकदम मरने वाला लास्ट 1 आवर, वहां पे आप एक बेट ले सकते हो, व्हेन द ऑप्शन प्राइसेस आर लाइक चीप डस्ट एकदम। तो क्योंकि वहां पे हमेशा आप देखोगे, यू विल ऑब्जर्व व्हेन यू ऑब्जर्व द मार्केट, समटाइम्स व्हाट हैपेंस in last 1 hour big movements will come, movements like 400 points, 500 points, that is where buyers make very good money. तो what उसको बोलते हैं जीरो का हीरो कॉल टाइप, मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, 5 rupees, 2 rupees, 3 rupees, but you know if you buy and suddenly some big movement comes, so a lot of times it happens, then your 3 rupees will go to 200 rupees. I have seen that 3 rupees ऑप्शन, 4 rupees ऑप्शन, जो लग रहा मरने वाला है, एकदम से उसमें जान नया जन्म आ जाता है। करण अर्जुन वापस जन्म ले लेते हैं। यू सॉ द मूवी करण अर्जुन? आप लोग हंसते नहीं हो क्या? एकदम सीरियस क्यों रहते हो इतना? सीरियस पीपल लुक गुड इन आईसीयू, नॉट इन जूम व्हाइल टेकिंग द क्लासेस और क्लासेस। थोड़ा स्माइल किया करो। सो यू नो दैट इज व्हाट हैपेंस। सो ये सारी चीजें होती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हेन यू डू ऑप्शंस, राइट,
दिस आर द एलिमेंट्स. तो मैंने अभी आपको टाइम वैल्यू सिखाया, थीटा, how theta works. So it will not work like, so if let's say now if I'm doing option selling, can I use same strategy across all 5 days? Think, will it work? Something which you are doing on expiry day, will it work on day one? अब logically आप बताओ जो मैंने आपको समझाया. Tell me, will it work? Why it will not work? Because the behavior is not same. मतलब आप 80 साल के इंसान को कुछ समझाते हो कि सर आपको ना थोड़ा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, आप ठीक से रहिए, और आप एक 18 साल के लड़के को बोलते हो कि बॉस थोड़ा डिसिप्लिन करो. डू यू थिंक बोथ एडवाइस विल वर्क सेम फॉर दिस टू जेंटलमैन? नो. 80 वाला समझ लेगा, हाँ ठीक है सर, नो आई विल बी डिसिप्लिन. एंड व्हाट अबाउट 18? वो नहीं समझेगा, वो बोले अच्छा डिसिप्लिन, रुको और 2-4 डिसिप्लिन तोड़ता हूँ. That is how options behave. So I have understood option just with metaphorically how human beings behave. इंसान कैसे बिहेव करता है ना, वैसे ऑप्शन को समझो. Then that is your best bet, right? So but why the problem is people who trade option, उनको लगता है ऑप्शन आता है बट आता नहीं है. Because you think it will, अच्छा समझ में आ गया, okay I learned to concept, I learned how this, and you go and apply it every day 11 o'clock same trade same stop loss. It will never work. मतलब थ्योरेटिकली भी वर्क नहीं करेगा. मुझे पता नहीं कैसे कोई बना सकता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना उसका फंडामेंटली गलत है आपका. जैसे आप हर सीजन में एक ही क्रॉप लगा सकते हो क्या? कि नहीं मैं जनवरी में भी चावल डालूंगा, जून में भी चावल लगाऊंगा, अक्टूबर में भी चावल लगाऊंगा, ऐसा चलेगा क्या? जस्ट बिकॉज द प्लॉट इज सेम, जस्ट बिकॉज एवरीथिंग, नो. विदिन दैट सर्टेन डायनेमिक्स आर वर्किंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. कौन सा क्लाइमेट है, वाटर का रिक्वायरमेंट क्या है, गेटिंग माय पॉइंट? तो नेचर में जो चलता है दिखता है ना, वैसे ही ऑप्शंस ट्रेडिंग है. यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग. तो थीटा समझ में आया, व्हाट इज थीटा, हाउ इट वर्क्स, करेक्ट? सो थीटा इज द, यू कैन से कि फ्रेंड ऑफ ऑप्शन सेलर्स. एंड यू नो व्हाई आई हैव नेम्ड माय ऑर्गेनाइजेशन एज प्ले विद थीटा? आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड. Because we are option sellers and we play with theta. Got it? ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है थीटा. बिकॉज जितना देर आप होल्ड करके बैठोगे, एक चीज तो तय है, आपका मूवमेंट पे ही पैसा बनेगा, टाइमिंग पे तो पैसा जाने वाला है. सो यू आर रनिंग अगेंस्ट द स्ट्रीम. बट ऑप्शन सेलर शांति से बैठ के पैसा बनाता है. सो नाउ इफ यू सी आवर स्ट्रेटेजी, नाउ इफ यू ऑब्जर्व योर पेपर ट्रेड, व्हाई डू यू थिंक एवरी डे, मोस्ट ऑफ द डे यू सी प्रॉफिट? टुडे ऑल्सो प्रॉफिट, yesterday ऑल्सो प्रॉफिट, उसके पहले भी प्रॉफिट, उसके पहले भी प्रॉफिट. कौन सा मैजिक है? मैजिक ये है कि someone has understood this game pretty well and applied all the experience in designing something which works, and there is no reason why it won't work. It may not work here and there in between, वो चलता है क्योंकि सबको पैसा बनाना है, बनाने दो उनको, राइट? बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि इनहेरेंट जो प्रिंसिपल है वो नहीं बदलने वाले. जैसे एरोप्लेन हवा में जाती है, क्यों उड़ती है एरोप्लेन? व्हाई डज एरोप्लेन फ्लाई? बिकॉज देयर इज बर्नौलीज थ्योरम व्हिच इज वर्किंग. वो एयर प्रेशर है. वो आप बोलोगे अच्छा अगर मैं प्लेन को उड़ाऊं और वो क्रैश कर गया तो? अरे वंस इन अ व्हाइल समथिंग विल हैपन, बट ओवरऑल नथिंग इज गोइंग टू चेंज. इफ यू थ्रो द स्टोन इन द एयर इट विल कम डाउन बिकॉज ग्रेविटी इज वर्किंग. तो आप अगर ग्रेविटी को समझते हो तो आप उस हिसाब से चीजें डिजाइन करते हो. That is why I say कि whatever I have designed is very scientific, very logical, very mathematical. कोई prediction नहीं है इसमें. Something is there in options, उसके nature में, until unless कि tomorrow market comes and change this nature. कि no, we are removing theta component from option. No theta. Then we have to change our name also from play with theta to run away from theta. Something like that. But वो नहीं बदल रहा ना, तो वो है तो ये है. So what I want all of you to understand is you may not design anything, but you need to understand कि आप किस चीज के साथ आप bet ले रहे हो, right ना? So you're betting against something which is in favor of you. So high chances you will make good money if that is proven. और फिर क्या होता है ना, ये एक आइडिया होता है हाइपोथेटिकल, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ना, ये एक हाइपोथेटिकल आइडिया है. स्टिल वी कैनॉट ट्रेड ऑन दिस. Now, based on this idea, this experience, we need to test something. इसको हमको टेस्ट करना पड़ता है. And that is what back testing is all about. Where, based on this, we zero down on something, we start testing it and see the past results, how it works. And then you optimize, and then
you come across something which is very concrete, जहां पे आपको ये फेथ होता है कि बॉस ये तो वर्क करेगा, बिकॉज इन द पास्ट इट हैज बीन वर्किंग, so no chance why it will work in future. So that is why first we need to understand the option, then we need to design some strategy around option, then we need to taste those things, or after tasting only you say ki yes, this is something which can be traded because I know what is the risk involved, I know what is the profit I can achieve, and then you commit yourself to a process, a system, because this is my process, this is something which is designed. If I make loss, I will make this much loss. If there are series of losses, this much I will lose, but beyond that I can expect this kind of profits, and just leave it and let it run. It's like planting a seed. एक आपने किसी ने आपको एक बीज दे दिया, बस ले जाके उसे डाल दो, उसके बाद रोज रोज उसको निकाल के नहीं देखना है अंदर क्या हो रहा है अंदर जो हो रहा है होने दो, शांति से बैठो, just keep watering, just take care of the environment, and what will happen, the tree will come, the fruits will come, but it will take some time. That is how option sellers make money. But sometimes what happens, people think ki okay, one day option buyer are like, एक दिन में करोड़पति बनना है, one day I will bring 50,000, इसको डबल कर दो, फिर क्या होता है वो, that becomes gambling. Once in a while it can happen, but you can't expect it to happen all the time. Getting my point? Because option buyer is like buying a lottery ticket. You are betting that today market will go up, market goes up, you make money. But that does not mean every day that will happen, right? But option seller means there is something which you know is going to work with you. Just play with it. Clear? Any questions so far? Whatever I taught you till now? No. No, sir. You all are certified option sellers, huh? कोई question नहीं है. Okay. So now next let's understand what is delta. अभी ये term भी सुन लिया ना, delta. What is delta? ठीक है. See, I have videos on all this topic, but I know you guys are not watching. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप उसको देखो. Classes are there, more detailed वो भी होंगे, but मैं थोड़ा overview देता हूँ. Delta क्या होता है? So delta means कि कि for example today Nifty is at 19,300, ठीक है ना, आज का प्राइस, day one of the option, ठीक है. ओके, डेल्टा को समझने के पहले एक और कंपोनेंट को समझ लेते हैं, गामा. देन विल अंडरस्टैंड गामा. सो गामा क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज गामा? गामा का क्या रोल होता है ऑप्शन प्राइसिंग में? No. सडन मोमेंटम जब आता है तब. सडन मोमेंटम आता है तो गामा क्या करता है? व्हाट डज गामा डू इन सडन मोमेंटम? पहलवान बन जाता है गामा, पहलवान. Impacts the price of the options. राइट, हाउ इट इम्पैक्ट्स, मतलब व्हाट इज द रोल? इम्पैक्ट मतलब बढ़ाता है, घटाता है, व्हाट डज इट डू? Increase. हाँ, Increase. इंक्रीज करता है. Increase the delta. Increase that delta, theoretical definition. गामा डेल्टा को बढ़ा देता है. बट आई विल टेल यू वेरी सिंपल एग्जांपल. ये सब समझ में नहीं आएगा आपको वैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे आपने घर में मिल्क होता है ना, मिल्क आता है, राइट? आप उसे गैस स्टोव पे लगा देते हो, आपने वहां पे हीट डाल दिया, धीरे धीरे हीट इज गोइंग ऑन, राइट? डू यू सी एनी चेंज इन द मिल्क इमीडिएटली? नो, नथिंग चेंज, राइट? वो शांत रहता है, राइट? एंड 90% ऑफ द टाइम तो वो ऐसे ही रहता है ना? ऐसा नहीं दिख रहा होता है कि आपको अंदर हीट बन रहा है, बट यू कांट सी दैट, राइट? एंड सडनली स्पाइक आता है ना, जो घर में बोलते हैं भागो भागो भागो, देखो बंद करो राइट? तो वो जो होता है ना, दैट इज योर गामा, उसी को बोलते हैं गामा वो. इसी तरह ऑप्शन भी होता है. मार्केट इज वर्किंग स्लो, हीट बन रहा अंदर, पोजिशन आर बीइंग क्रिएटेड बाय बिग पीपल, राइट? यू कांट सी, पीपल लाइक अस कांट सी, करेक्ट? हमें नहीं पता चलता है. और जैसे बनता है सडनली एक स्पाइक आता है. और जब ये आता है तो होता है क्या है, जब आप अपने पोटेंशियल से ज्यादा कुछ बोल जाते हो. जैसे कई बार होता है ना, नॉर्मल इंसान है, ठीक है, नॉर्मल बातें करते हैं, बट किसी ने आपको आके थोड़ा सा ललकार दिया, जोश में दिला दिया, तो आप एकदम गदर वाले सनी देओल बन जाते हो. ऐसी सी बातें कर देते हो, राइट ना? दैट इज गामा मूव. कि मतलब नॉर्मल से ज्यादा नहीं बोलते यार, तू इतना औकात में बात कर,
सो गामा, मतलब मैं आपको कॉमन सेंस में समझा रहा हूँ जो कि समझ में आएगा। किताबी बातें मैंने 1 साल पढ़ी, मुझे नहीं समझ में आया। When I started trading option, then I realized, अच्छा this is gamma move, which means sudden momentum, जो बोलते हैं ना शॉर्ट टाइम में, कम समय में ज्यादा हो जाना, वो होता है गामा। लाइक पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप पिया है कभी आपने? यू ओपन द बॉटल, थोड़ा सा उसके अंदर आता है उफान सा, बट आप ना उसमें काला नमक डाल दो, ब्लैक सॉल्ट डाल दो, क्या होता है? गामा मूव होता है। दैट इज योर गामा। एकदम से हो जाता है ना, राइट? वो होता है गामा मूव, विच मीन्स ऑप्शंस की लैंग्वेज में प्राइस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, एंड सडनली क्या हुआ कि 1 मिनट में, 1 मिनट 30 पॉइंट, निफ्टी 40 पॉइंट, ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, 100 पॉइंट भी नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट 30 पॉइंट का मूवमेंट विद इन सेकेंड्स। वन बिग ऑर्डर गॉट पंच, सडन प्राइस ऊपर किया, तो ऑप्शन जो अभी 40 रुपीज का था वो सडन एकदम 60 पहुंच जाएगा। बट एज सुन एज दैट इज, वो हॉल्ट करता है, मतलब निफ्टी का इंडेक्स रुकेगा, तो ये 60 से नीचे आ जाएगा। तो वो जो मूवमेंट होता है ना स्पाइक वाला, दैट इज गामा। इट कैन कम ऑन ईदर साइड, when suddenly market will go up and when suddenly market will come down. So gamma is like your momentum में आएगा। Now what can gamma do? So gamma is actually it benefits option buyer। क्यों? बायर को तो यही चाहिए, पैसा बढ़ जाना चाहिए। अदरवाइज फॉर यू टू मेक मनी द इंडेक्स हैज टू मूव सिग्निफिकेंटली, करेक्ट ना? तो ये जो मूवमेंट होता है ना, आप इसको हमेशा टाइम के साथ जोड़ के देखो। एक होता है कि एक आदमी 5 किलोमीटर भागता है, 5 किलोमीटर, पर्सन रन 5 किलोमीटर, तो इज दिस अ स्टेटमेंट टू जज द पर्सन? ओ यू रन 5 किलोमीटर, वाह वाह वाह। This is not the way you should judge, because if the next part I tell you, oh no, don't praise me so much, in 24 hours I went 25 kilometer, फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? अबे यार इतना तो बच्चा भी चला जाएगा, मतलब 24 आवर्स में यू जस्ट वेंट 5 किलोमीटर। तो आपने 5 किलोमीटर सुन के तो कर दिया, लेकिन अभी आपको 24 आवर्स मिला, तो आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं तो बहुत कम है, isn't it? बट इफ आई से इन 10 मिनट्स आई रन 5 किलोमीटर, फिर आप क्या बोलोगे? 10 मिनट्स, अलग ही इंपैक्ट है ना। तो वो किलोमीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कितने टाइम में किया। उसी तरह व्हेन यू डू ऑप्शन ट्रेडिंग ना, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि मार्केट कितना पॉइंट ऊपर नीचे जा रहा है। what is more important is कि in what duration market is making this movement. If that movement comes in a short span of time, you will witness gamma, which basically means ऑप्शंस के अंदर में जो गामा का कंपोनेंट होता है वो शूट अप कर जाता है, और उसके शूट अप करने से वो क्या करता है? दैट इज व्हाट डेल्टा को इंक्रीज करता है। तो डेल्टा क्या होता है अब समझ में आता है? तो गामा समझ में आया? गामा इज ऑल अबाउट मोमेंटम, थीटा इज ऑल अबाउट टाइम, कि लंबे टाइम में। तो थीटा एंड गामा आर बेसिकली इनवर्स, मतलब उल्टे हैं। लाइक ऑप्शन सेलर्स के लिए थीटा अगर फ्रेंड है तो गामा क्या हुआ? एनिमी हुआ। बिकॉज गामा क्या करेगा? इट इज मेनली बिकॉज ऑफ गामा मूव्स दैट आवर स्टॉप लॉस विल गेट हिट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, मैं मेटाफोर्स देता हूं बेसिकली, सो दैट आप समझ सको। एक मेटाफोर और आपको देता हूं। लेट्स से हेमंत और नवीन दोस्त हैं, एक्चुअली में भी वो दोस्त हैं, राइट? तो बोथ ऑफ देम आर फ्रेंड। तो दोनों की रिलेशनशिप वैसे तो ठीक है, लेकिन एक दिन ना नवीन के अंदर में गामा मूव आ गया। गामा मूव मतलब कुछ तो उसके साथ डिस्टरबेंस था, वो बहुत गुस्से में था और उसने हेमंत को बहुत सारी गालियां सुना दी। तो हेमंत का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वो जो था ना टॉलरेंस लेवल दोस्ती का, वो खत्म। भाई आज के बाद तू कौन मैं कौन पता नहीं, आज तेरे से कोई मतलब ही नहीं है। तो नॉर्मली इन ह्यूमन रिलेशनशिप ऑल्सो स्टॉप लॉस विल गेट हिट बिकॉज ऑफ गामा मूव्स। ऐसे नहीं होता कि हर दिन हम अच्छे अच्छे और एकदम से, कभी एक इंसिडेंट होता है, एक मोमेंट आता है जो आप रिलेशन खराब करते हो। एग्री? वैसे ही ऑप्शन में जब आप ट्रेड करते हो तो नॉर्मल टाइम एवरीथिंग विल बी गुड, बट बिकॉज ऑफ दैट गामा मूव ना, जो मार्केट ने सडन रिएक्ट किया ना, उसने क्या किया? ऑप्शन के प्राइस को बढ़ा, जितनी उसकी औकात नहीं थी उससे ज्यादा वो बोल गया। एंड हमने कहा भैया तू बहुत डेंजरस लग रहा है, अभी तुझे गुस्सा आ रहा है, अभी पता नहीं तू कटारी वटारी पकड़ लेगा, बंदूक उठा लेगा, तो बेटर है लेट मी गो अवे फ्रॉम हियर एंड यू आर आउट ऑफ द ट्रेड, इजंट इट? अब आपको समझ में आया गामा क्या होता है? नाउ यू विल नेवर फॉरगेट। एंड बिलीव मी, आप कोई भी किताब निकालो, आप टेक्निकल डेफिनेशन, हाई फंडू डेफिनेशन, आप कोई भी यूट्यूब वीडियो जाके देखो लोगों के,
वो ऐसी बातें करेंगे, ऊपर ऊपर लगेगा कुछ तो समझ में आया है लेकिन एक्चुअली भी कुछ समझ में नहीं आता है. सो दैट इज व्हाट हैपेंड टू मी आल्सो, कि यार ये समझ में तो आ रहा है लेकिन है क्या, वो नहीं समझ में आता है until unless someone tells you. And then when I was trading I understood. और फिर जब मैंने ये समझा ना, then I always think of examples which people can connect and they can never forget it. Oh, I know this is gamma. Got it? तो थीटा भी समझ में आया, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बींग्स. गामा भी समझ में आया, राइट, कि सडन ही होता है. तो स्टॉप लॉस मोस्टली तभी हिट होगा क्योंकि हम कुछ तो स्टॉप लॉस रखते हैं ना मोस्टली. अदरवाइज दूसरा तरीका क्या हो सकता है स्टॉप लॉस हिट होने का, कि मार्केट मूव सिग्निफिकेंटली टू मच, मतलब उसका डायरेक्शन बहुत 200 पॉइंट चला गया आफ्टर मी टेकिंग अ ट्रेड, बट इट टुक लॉट ऑफ टाइम. तो जब टाइम एंगल ज्यादा रहेगा तो इट कैन इट मे मेक मोर मूवमेंट ऑल्सो, तो भी चलेगा कि बहुत ज्यादा चला गया वो, राइट ना. ऐसा वाला कि कम ही परेशान कर रहे हो किसी को लेकिन आप रोज परेशान करते हो. एक होता है कि एक ही दिन में आपने इतना परेशान कर दिया कि हाथ जोड़ लिया भैया अब तुमसे नहीं चलेगा. और एक होता है कि थोड़ा थोड़ा परेशान करते हैं तो आदमी टॉलरेट कर लेता, अच्छा थोड़ा ही तो कर रहा है, वेट करते हैं वेट करते हैं वेट करते हैं. फिर 100 दिन से आप बोलते हैं यार तुम तो हमको 100 दिन से परेशान करो, हो गया. तो दैट इज हाउ योर स्टॉप लॉस विल बी टेकन, इधर दिस रूट और दैट रूट. करेक्ट. और कई बार क्या होता है गुस्सा आता है लेकिन तुरंत ठंडा भी हो जाता है, लेकिन ठंडा होने से क्या होगा, हमारा तो काम खराब कर दिया तुमने स्टॉप लॉस ले लिया. करेक्ट. हाँ राजेश, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ तो अमित, तो गामा मूव दोनों साइड आ सकता है? या दोनों साइड, ऊपर नीचे, बोथ साइड इट कैन. क्योंकि देखो कॉल पुट दोनों ही अपने आप में एक अलग कैरेक्टर है. एक राम है, एक रावण है. गुस्सा दोनों को आ सकता है. रावण को भी गुस्सा आएगा, वो अपने हिसाब से चीजें करेगा, सीता को मतलब उठा लाएगा, हालांकि गुस्से में नहीं उठाया था कुछ और. तो गुस्सा दोनों को आ सकता है. कॉल कैन विल आल्सो रिएक्ट, पुट विल आल्सो रिएक्ट. प्राइसेस दोनों के बढ़ेंगे जब गामा मूव आएगा, वेदर इट कम्स डाउन और इट कम्स अप. ओके. So, Amit, one more thing. हाँ You said gamma is, in favor for buyer. बाय, राइट. Okay, ये जब नीचे जाता है उस केस में कैसे फेवर में रहेगा? बायर तो फुट का भी हो सकता है ना नितिन. लाइक डोंट कंफ्यूज कि बाई मतलब ऊपर जा रहा है मार्केट, बाई मतलब नीचे. पुट, देयर आर टू इंस्ट्रूमेंट, रिमेंबर दैट. See, you have to understand option is a 3-dimensional object. इसके अंदर में एक तो कॉल और एक पुट होता है. दैट इज वन डायमेंशन यू हैव टू अंडरस्टैंड. हाँ कॉल कॉल, क्योंकि अभी हमको स्टॉक करके ना एक ही चीज दिमाग में होता है. बाई क्या मतलब ऊपर, सेल क्या मतलब नीचे. ऐसा यहाँ पे नहीं सोचना है क्योंकि यहाँ पे आप कॉल और पुट दो इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहे हो. बाय दोनों को कर सकते हैं, राइट. कॉल भी बाय किया मैंने, पुट भी बाय किया. तो अगर मेरे बाय करने का मार्केट ऊपर गया तो कॉल वाला मुझे फायदा देगा, ऑल्दो मैंने पुट बाय किया बट वो मुझे नुकसान देगा क्योंकि वो नीचे के डायरेक्शन का है ना वो इंस्ट्रूमेंट. तो और वाइसी वर्सा कर दो, मार्केट नीचे गया तो पुट बाय विल गिव यू मनी. जैसे मैंने कहा ना, अगर मार्केट का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय एंड पुट सेल ये दो आपको प्रॉफिट देगा. अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट बाय और कॉल सेल आपको प्रॉफिट देगा. तो दो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, तो कॉल और पुट आपको समझना पड़ेगा. दूसरा आपको समझना पड़ेगा बाय वर्सेस सेल, क्योंकि दोनों एक अलग चीजें हैं. जैसे कॉल और पुट उल्टा है ना, अपोजिट, वैसे बाय करना और सेल करना अपोजिट हो जाता है. तो वो भी आपको समझना पड़ेगा, वरना इसमें भी आप कंफ्यूज हो गए. आपको लगेगा यार मैंने तो पुट को, मार्केट नीचे जा रहा है, ये पुट मुझे लॉस क्यों दे रहा है. क्यों? क्योंकि आपने पुट को सेल किया होगा इसीलिए लॉस दे रहा है. बट अगर आप पुट को बाय करोगे तो नीचे वाले मार्केट में फायदा देगा. तो आपको वो प्लस माइनस भी देखना होता है अपने ट्रेड में, वो बाय और सेल इंडिकेट करता है. और आपको कॉल और पुट को भी समझना होता है. तो ये हो गए दो डायमेंशन, करेक्ट. और तीसरा डायमेंशन होता है ये प्राइसिंग का, कि किस वजह से क्या हो रहा है. ये प्रॉफिट आया तो क्यों आया, थीटा की वजह से आया, राइट. स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्यों हुआ. तो वो जो एंगल अभी हम समझ रहे हैं ना, ये सारा गामा थीटा, वो आपका ऑप्शन का तीसरा एंगल है. ओके. क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अच्छा कॉल है, पुट है, बाय है, सेल है, बाकी सब कांस्टेंट है. बाकी सब कांस्टेंट नहीं है. इट इज लाइक कि एक और एग्जांपल आपको देता हूं टू अंडरस्टैंड गामा थीटा. वेजिटेबल्स को ले लो आप, टमाटर को ले लो. अभी अभी देखो सब्जी मंडी में सप्लाई आया हुआ है, राइट. तो सप्लाई है, रखा हुआ है, तो प्राइस अगर आप देखो टोमेटो का बहुत सारा सप्लाई आया तो प्राइस कम है, लोग अभी ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे. बट सडनली एकदम से 100-200 लोग आ जाते हैं मार्केट में, राइट. और सडनली आपका जो डिमांड बढ़ रहा है, राइट. तो डिमांड बढ़ता है तो क्या होगा, तो प्राइस इंक्रीज होगा.
कई बार होगा प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज होगा, कई बार प्राइस एकदम से इंक्रीज हो जाता है। एकदम से कब इंक्रीज हो जाता है? कोई न्यूज आ गया। क्या न्यूज आ गया? कुछ भी न्यूज आ गया कि भाई यहाँ पे कोई बड़ी रैली होने वाली है, बहुत बड़ा कुछ आयोजन हो रहा है, लॉट ऑफ टोमेटोज आर रिक्वायर्ड, दाम बढ़ गया एकदम से। तो ये जो एकदम से कुछ चीजें होती है ना, दैट इज योर गामा, सडनली, और सडन प्राइस का जंप होता है, बट इट मे नॉट सस्टेन, यू ऑल्सो रिमेम्बर दैट। क्योंकि कई बार कुछ फॉल्स न्यूज, फॉल्स रूमर होता है, जैसे बोलते हैं ना वायरल हो गया वीडियो, तो जो भी वीडियो वगैरह वायरल होता है, कितने दिन उसका इम्पैक्ट रहता है? 2-4 दिन, उसके बाद शांत हो जाता है ना। करेक्ट। जैसे वो, आप ऐसे भी देख लो, अब गाना आया था काचा बादाम काचा बादाम, कितने लोग अभी सुनते हैं? बीच में तो सब सुन रहे थे, क्योंकि वो गामा मूव था, बीच में आया चला गया। So that is how it will work, and when it goes, it will immediately fade. तो ऑप्शन का प्राइस भी ऐसा होता है, गामा मूव में एकदम बढ़ जाता है, और जैसे वो रुकता है तो फिर रिसीड कर जाता है। और यू टेक बैंगलोर रेन्स, सडनली बहुत ज्यादा रेन होगा तो क्या होगा? सारा फ्लडिंग हो जाता है, लगता है कि बैंगलोर तो कोई तालाब बन गया, बट जैसे वो रेन हॉल्ट करता है, थोड़ी देर बाद सब क्लियर हो जाता है। दैट इज हाउ गामा, तो प्राइसिंग वैसे ही वर्क करती है गामा में, ठीक है। और थीटा क्या है? वो आराम से मारेगा आपको, धीरे धीरे करके, वो मरना तय है। तो प्राइसिंग को कम होगा, लेकिन वो टाइम एलिमेंट विल अपने हिसाब से, वो आपको ये समझना होगा कि कौन से दिन मेरा मैक्सिमम थीटा डिके होने वाला, और कौन से दिन ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हम थीटा का। तो नाउ यू कैन से कि अच्छा, देन इन दैट केस व्हाई वी डोंट ओनली ट्रेड एक्सपायरी, हाउ डू वी मेक मनी ऑन नॉन एक्सपायरी? तो नॉन एक्सपायरी के दिन में हम क्या करते हैं, जो स्ट्रैटेजी होता है, मोर देन गामा वी ट्राई टू मेक मनी फ्रॉम द डायरेक्शनल पार्ट ऑफ मार्केट, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू को कैप्चर करते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को, थीटा तो थोड़ा मिलेगा ही, कुछ 10% ही मिलेगा। तो हम डायरेक्शन को ऐसे कैच करते हैं कि अगर एक साइड भी डायरेक्शन पकड़ लिया मार्केट ने, तो एक तरफ का स्टॉप लॉस हट जाएगा, और दूसरी तरफ जो भी ट्रेड होगा उसको हम पूरा कैरी करते हैं, तो उसका प्राइस तो चेंज होगा ना विद डायरेक्शन। तो दैट इज हाउ वी मेक मनी ऑन दोज डेज। तो उन दिनों में हम स्टॉप लॉस बहुत कम रखते हैं, बिकॉज इफ यू कीप अ बिग स्टॉप लॉस, one side will run very fast, other side will not give you much, so net on net you will end up in loss only. That is why not everything will work on every day, I keep saying, और every day, हर बोलते हैं ना, हर दुश्मन के हिसाब से आपको अपने सैनिक भेजने होंगे। हर पिच पे हर बैट्समैन अच्छा नहीं होता है। अभी रविचंद्रन अश्विन को हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप पे नहीं खिलाया, क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि ऐसा लगता है कि वो उन पिचेस पे अच्छा नहीं कर पाएगा, ये assumption है, राइट? बट आप इंडिया में तो उसको खिलाते हो। वैसे ही होता है, हर दिन हर चीज नहीं काम करेगी, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज डेल्टा? लेट अस अंडरस्टैंड डेल्टा। डेल्टा क्या करता है बेसिकली? अब आपको ये सोचना चाहिए, ठीक है, ये सब तो समझ में आ गया। नाउ यू नो कि इंडेक्स विल मूव, तो समटाइम्स इंडेक्स विल मूव 100 पॉइंट, समटाइम्स इट विल मूव 50 पॉइंट्स। सो आपका इंटरेस्ट क्या है कि ये जो अलग अलग स्ट्राइक्स हैं, तो जब इंडेक्स, Amit, I have a question actually. Yeah, I raised it. So, this is Vaibhav. वैभव, अच्छा Vaibhav. ठीक है। Vaibhav. और नाम लिख लिया करो ऐसा वैभव करके, अभी वीएम, अरे वो फोन, वीएम हार्डवेयर। okay. हाँ वैभव। Clear नहीं है. So, yeah. So basically, I want to understand. जैसे आपने बताया कि gamma is a spike और impulse में जैसे आता है, तो अगर हम उसको understand करें, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीजें time driven होती है, तो is it like most of our strategies are intraday? तो ये इम्पल्स, हम इसको इम्पल्स इस तरह कंसिडर करते हैं अगर वो कोई टाइम फ्रेम में आता है? नहीं, ये कोई टाइम फ्रेम में नहीं आता। यू गामा कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, बट एज आई सेड कि व्हेन एवर सडन मूवमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे अभी लेट्स से आरबीआई का अनाउंसमेंट है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है। तो मार्केट इज एंटिसिपेटिंग सम मूवमेंट, बिकॉज यू नो दैट इज अ मेजर थिंग फॉर मार्केट्स, बैंक का क्या होगा। अभी आरबीआई का गवर्नर आया बैठा, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि इन्फ्लेशन ऐसा ऐसा ये है। तो जैसे जैसे वो देता है, तो जैसे मैंने कहा ना, दूध गर्म हो रहा है, अंदर कुछ चल रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, वैसे ही मार्केट का प्राइस सब रेडी रहते हैं। अभी जैसे आरबीआई का वहां से एक स्टेटमेंट आया कि रेपो रेट डाउन बाय 0.5%, सडनली क्या होगा? एकदम से ऊपर जाना चाहेगा मार्केट, तो कम टाइम में बड़ा मूवमेंट होगा। यू आर गेटिंग एट, मतलब within 30 seconds maybe 100 points move is coming. क्या होगा ऑप्शन का प्राइस में? सडन इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ गामा कंपोनेंट विल शूट अप। नाउ इट सेज ओके वी आर गोइंग टू डू दैट, बट इफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस विल अगेन बी एग्रेसिव एंड विल इंक्रीज द रेट। सडनली मार्केट बोलता है ये तो बात अच्छी नहीं लगी हमें, तो वो जो मूवमेंट ऊपर जा रहा था वो होल्ड करके थोड़ा रिसीड करेगा, तो जो गामा बना वो
ऐसा होता है। तो शॉर्ट लिव्ड होता है शॉर्ट और लिव्ड होता है, मतलब शॉर्ट लिव्ड होता है मोस्टली। और वहीं पे अगर मान लो मैंने एक बाय ऑर्डर लगा रखा है कि चलो अभी लग रहा है ऐसा आ रहा है, तो 20 पे करंट प्राइस है, मैं 40 का एक बाय लगा देता हूँ, 30 का लगा देता हूँ। अगर 30 पे ऊपर गया तो मैं इसको बाय करूंगा, और मैंने टारगेट भी साथ में 100 का लगा दिया। लेट्स से जस्ट यू कैन प्लेस सच काइंड ऑफ ऑर्डर्स। अभी स्टेटमेंट आया, जैसे प्राइस ऊपर गया 30 पे बाय हुआ, और जैसे 30 से 100 गया मेरा सेल भी हो गया, मैंने विद इन सेकेंड्स 70 पॉइंट कैप्चर कर लिया। ओके, So तो जनरली this मैं is कह where सकता one हूँ can तो use such kind of things. हाँ, a single candle on a minute or 5 minute बस बस इतनी ही चाहिए। बजट डे इज अगेन अनदर डे वेर यू कैन सी दिस लाइव हैपनिंग, जहां पे आपको मेरा ये सारा बात याद आएगा। और बाकी दिन में, पूरे दिन में एक आध बार आता है। जैसे आज के डे, आज पूरे दिन में एक बार भी गामा नहीं आया। आज के जो Okay. फिन निफ्टी में नहीं आया, बैंक निफ्टी का आई डोंट नो, आई वाज नॉट चेकिंग, बट फिन निफ्टी एंड निफ्टी वाज, मतलब gamma move is only when sudden orders are getting placed. Sudden मतलब that is the keyword, suddenly। धीरे धीरे Okay. वाला तो कोई And does gamma that happen on expiry days? बहुत ज्यादा, एक्सपायरी डे में तो बहुत ज्यादा होता है, सडन मूवमेंट आता है एकदम से। एक एक कैंडल आ जाएगा एकदम से, एक बड़ा स्पाइक आएगा और फिर नीचे, तो वो गामा ही मूव होता है। मोस्टली स्टॉप लॉस हम लोगों का, सेलर्स का, उसी में ही जाता है। Right. So any strike rate, I'm sure, is component of every ingredient. Like if you talk of gamma, delta. ऑल द स्ट्राइक्स व्हेन गामा विल कम, इट्स लाइक कि सुनामी आया है तो, या अर्थक्वेक आया तो, अर्थक्वेक का एक एपी सेंटर होता है जहां पे मेजर इंपैक्ट होता है। उसके बाद वो इम्पैक्ट काफी दूर तक जाता है ना, बट दूर वाले में कम जाता है। वैसे गामा मूव होते हैं, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वो करेगा एट द मनी पे, और उसके बाद वो ऐसे करके आउट ऑफ द मनी तक जाता है। बट बहुत दूर का जो ऑप्शन होगा वहां आपका इम्पैक्ट कम होगा कंपेयर टू जो ऑप्शन एट द मनी पे होगा और इन द मनी में होगा। तो इसको Okay. मेजर करते हैं हम डेल्टा से। तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज रेट ऑफ चेंज एट विच ऑप्शन प्राइस चेंज विथ रिगार्ड्स टू द अंडरलाइंग। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है, ये सुनना ध्यान से, निफ्टी वेंट अप बाय 100 पॉइंट्स, तो निफ्टी तो 100 पॉइंट गया, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर भी 100 पॉइंट जाएगा। तो फ्यूचर और निफ्टी का जो फ्यूचर होता है ना, उसे हम बोलते हैं यूनिट डेल्टा। यूनिट डेल्टा का मतलब हुआ कि अगर इंडेक्स इतना पॉइंट गया तो उसका फ्यूचर भी सेम पॉइंट मूव करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज यूनिट डेल्टा। ठीक है, बिकॉज इट इज रेट एट विच द अंडरलाइंग तो जैसे अगर निफ्टी 100 गया तो फ्यूचर भी 100 जाएगा, वेरी सिंपल। बट व्हाट अबाउट ऑप्शंस एंड ऑल द डिफरेंट स्ट्राइक्स? तो वी हैव 3 काइंड ऑफ स्ट्राइक्स, इन द मनी स्ट्राइक, एट द मनी स्ट्राइक एंड आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक। अब आप समझना है कि कौन से स्ट्राइक में कितना मूवमेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी 100 पॉइंट का मूवमेंट कर रहा है तो हमारे पास इन द मनी वाला स्ट्राइक भी है, लेट से हमारे पास एट द मनी भी स्ट्राइक, आउट ऑफ द मनी। तो क्या ऑल द स्ट्राइक विल मूव बाय 100 पॉइंट? नो, स्ट्राइक्स विल नॉट मूव बाय 100 पॉइंट। तो कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा होता है वो 0 से +1 होता है, 0 to +1, और जो पुट ऑप्शन का डेल्टा होता है वो 0 to -1 होता है, उल्टा कॉल का जो होगा उसका उल्टा, राइट। तो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शंस डीप इन द मनी है, लाइक 1000 पॉइंट, 500, 700 पॉइंट फार, तो वो ऑलमोस्ट फ्यूचर के जैसा बिहेव करेगा। यानी इफ द इंडेक्स इज मूविंग बाय 100 पॉइंट, द इन द मनी ऑप्शन विल मूव आल्सो बाय 100 पॉइंट, बिकॉज इन द मनी ऑप्शंस के अंदर में इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। यू गॉट इट ना, ऑलरेडी वो इनसाइड है। एट द मनी ऑप्शन जो होता है उसका जो ये होता है वो 0.5 होता है, 0.5 at the money options delta is 0.5, which means if you are looking at the money option 19,400 call option price 50, nifty went up by 100 point, so what will be the price? How much will this price 50 become? 90. No, 40 100. plus 50 से 100, अगर निफ्टी went by 100 point, what is 0.5 of 100? 50, तो 50 तो ऑलरेडी प्राइस है, 50 + 50 is 100, राइट ना, समझ में आया? एट द मनी का। बट अगर वो इन द मनी ऑप्शन है तो बहुत अंदर है तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट भागेगा वो, यानी मार्केट इज गोइंग 100 पॉइंट, दैट ऑप्शन इज गोइंग बाय 100 पॉइंट्स, बट एट द मनी ऑप्शन विल ओनली इंक्रीज बाय 50 पॉइंट्स। एंड एज यू गो आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी मतलब वेरी फार वाला ऑप्शन, वहां पे इंपैक्ट 0 की तरफ होगा, विच मीन्स 0.5,
थोड़ा दूर है तो 0.4, 0.3. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 पॉइंट अवे का ऑप्शन देख रहे हो तो इफ निफ्टी गोज बाय 100 पॉइंट, दिस विल गो बाय 40 पॉइंट्स ओनली. और बहुत दूर का ऑप्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ओटीएम वाले ऑप्शन आप बाय करोगे तो आपका जो निफ्टी या बैंक निफ्टी जितना मूव करेगा वहां पे आपको सबसे कम फायदा होगा, इजंट इट, क्योंकि वो ज्यादा भाग नहीं रहा है. तो बायर्स के लिए बेस्ट बेट होता है टू बाय इन द मनी ऑप्शंस, बिकॉज दो रीजन है उसके. इन द मनी ऑप्शन में थीटा कम होता है और इन द मनी ऑप्शन आपको मैक्सिमम डेल्टा देगा. अगर आपके क्यों आप बाय क्यों कर रहे हो? आप बाय इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू फील मार्केट विल गो अप और इट विल गो डाउन, राइट ना? दैट इज व्हाई यू आर बाइंग. सो व्हेन यू आर टेकिंग अ ट्रेड बेस्ड ऑन दैट assumption, then why not do something where you can get maximum reward? So your maximum reward is in the money. Clear? ये आया समझ में? राइट राइट. राइट है. और एट द मनी लोगे तो वहां पे एट द मनी ऑप्शन में मैक्सिमम टाइम वैल्यू होता है, थीटा सबसे ज्यादा होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है. सो इफ यू आर बाइंग फ्रॉम एट द मनी, इट विल इंक्रीज फ्रॉम 0.5. So which means index went by 100, you will gain only 50 points. But in the money options, for example, there are two people, Naveen and Hemant. तो नवीन को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, हेमंत को भी लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, और दोनों को लग रहा है कि 100 पॉइंट जाने वाला है. बट नवीन ने क्या किया? एट द मनी बाय किया. आदित्य ने लेट से आउट ऑफ द मनी बाय किया. मतलब नवीन ने 50 रुपीज का ऑप्शन बाय किया, आदित्य ने 20 रुपीज का ऑप्शन बाय किया, हेमंत ने 80 रुपीज का ऑप्शन बाय किया, बिकॉज वो थोड़ा इन द मनी है. निफ्टी वेंट अप बाय 100 पॉइंट्स. तीनों का प्रॉफिट एक नहीं होगा, इवन दो देयर कैपिटल में बी सेम, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी जो है ना एट पर प्राइस अगर आप लगाओ तो नहीं होगा. क्यों? सबसे ज्यादा कौन अर्न करेगा? नवीन, जिसने इन द मनी लिया था, क्योंकि इन द मनी ऑप्शन में मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा. अगर 100 पॉइंट गया तो वो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट जाएगा, तो वो 100 क्वांटिटी लिया है तो ही विल मेक 8000. नवीन ने 50 रुपीज का लिया था, लेट से 100 क्वांटिटी, अभी वो 50 पॉइंट ही बढ़ेगा एट द मनी 100 पॉइंट, तो नवीन विल मेक 5000 रुपीज. हेमंत इज मेकिंग 8000 रुपीज. आदित्य, इफ ही इज डूइंग टू फॉर ओटीएम, ही विल मेक ओनली 2000 रुपीज. यू आर गेटिंग दिस? तीनों का व्यू सेम था. तो इससे क्या पता चल रहा है कि ऑप्शन बायर को हमेशा इन द मनी में खेलना चाहिए. इफ यू प्ले आउट ऑफ द मनी, इवन दो यू मे बी राइट, बट स्टिल यू विल लूज इट. और ये तब हुआ जब यू नो व्हेन देयर इज सम मूवमेंट. बट इमेजिन करो कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ तो क्या होगा? थीटा तो होगा ही होगा पक्का 100%, तो आप तो वैसे भी पैसा गवा दोगे. और अगर आपके अगेंस्ट गया तो तब तो गए काम से, फिर तो टाइम भी नहीं मिलेगा, तुरंत खत्म, राइट? यू विल बी गॉन. So that is why option buyer can lose money even though when the view is right. Nothing happens, then also you can lose money. Something happens against you, 100 वो तो तब तो गए. But seller का क्या होता? Again उल्टा. Something happens in favor of you, you will make money. Nothing is happening, कोई movement नहीं है, you will make money. And third is something happens against you, then also you can end up making money. क्योंकि आपके पास थीटा का बफर होता है. क्लियर? आया समझ में? See, अगर नहीं भी आया ना, then what you should do, there are a lot of other videos. At least you are getting some base today. Now if you go and watch all these videos again and again, you will definitely understand. ठीक है? So delta is the rate at which option prices change with respect to underlying. Clear? अभी समझ में आया क्या हो गया इसका मतलब? Now what can impact delta? ये तो मैंने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे दिया, बट इन रियल टाइम, इन रियल मार्केट, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. बिकॉज डेल्टा को दो चीजें डायरेक्टली इंपैक्ट करती है, रादर तीन चीजें इंपैक्ट करती है. वन इज थीटा, वन इज गामा एंड वन इज वेगा. ये तीन चीजें क्या करती है? वो डेल्टा को इंपैक्ट करता है. मतलब डेल्टा बढ़ जाता है कई बार. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा गामा. नाउ व्हाट डू यू थिंक गामा विल डू टू डेल्टा? टेल मी. आप गामा समझ गए? गामा क्या करता है? सडन प्राइस को बढ़ाता है. तो वो डेल्टा वो क्या करता होगा? बढ़ाता होगा या घटाता होगा? विल इट इंक्रीज डेल्टा और विल इट डिक्रीज डेल्टा? It increases. इंक्रीजेस डेल्टा ना, वेरी सिंपल. तो विच मीन्स कि जैसे मैंने कहा ना कि 100 पॉइंट मार्केट गोज, एटीएम विल गो 0.5. बट इफ देर इज अ गामा मूव, देन इन 100 पॉइंट द ऑप्शन में इंक्रीज बाय 60-70 पॉइंट्स ऑल्सो. Why? Because गामा ने डेल्टा को 0.5 से 0.7 कर दिया फॉर द टाइम बिंग, जो मोमेंटरली वो आया.
तो औकात से ज्यादा ऑप्शन ने अपना बिहेवियर दिखा दिया. नाउ यू गॉट इट. तो गामा डेल्टा को इंक्रीज कर देता है. सेम वे मार्केट वेंट बाय 100 पॉइंट, आई सेड, बट इफ दिस 100 पॉइंट मूवमेंट हैज कम इन 1 डे 5 आवर्स, फिर वो एटीएम 50 पॉइंट मूव नहीं करेगा, फिर वो एटीएम सिर्फ 20 पॉइंट मूव करेगा. व्हाई? बिकॉज जितना डेल्टा से वो बढ़ा उतना थीटा ने भी तो उसको डिक्रीज कर दिया ना, क्योंकि यू आर टेकिंग सो मच ऑफ टाइम, इजंट इट? तो यहाँ पे थीटा क्या कर रहा है? डेल्टा को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? बता रहा है. डिके कर रहा है. घटा रहा है, राइट है. सो थीटा डेल्टा को रोकता है, गामा डेल्टा को बढ़ाता है. ऐसे करो ना, गामा धक्का दे रहा है डेल्टा को और थीटा उधर से ऑपोजिट से दे रहा है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो जस्ट इमेजिन अ पिक्चर, बीच में है डेल्टा, गामा इज पुशिंग डेल्टा इन दिस डायरेक्शन, थीटा इज पुशिंग इन दिस डायरेक्शन, and that is how prices are determined in real time. So again, why most of the people fail in option? Let me tell you, you run some theory here and there, पढ़ लेते हैं जाके डेल्टा से, और people think they understand option, but let me tell you again and again, only a person who has literally traded in options at least for 2 years, day in day out with all the understanding, I can believe that guy will understand option, how actually it works. Theory से आप option समझ ही नहीं सकते. Even in MBA, in IIMs also people read options. वहां पे ना कोर्स होता है, ऑप्शंस पढ़ाते हैं वहां पे भी, बट दैट डज नॉट मीन कि दे कैन मेक मनी. पैसा वही बना सकता है जो प्रैक्टिकली समझता है. लाइक यू रीड अबाउट सी सिटिंग एट होम, एंड देयर इज अ गाय हु इज गोइंग इन द सी एवरी डे. Who do you think understand the sea better? Someone who is going there every day, right? That is what option trading. So the problem is, a lot of people read this, they watch some videos, YouTube here and there, थोड़े से डॉग, एंड दे थिंक आई नो ऑप्शन ट्रेडिंग, और जाके वो मार्केट में घुस जाते हैं, एंड दिस इज हाउ दे गेट किल्ड. You are getting my point? So that is why you have heard कि option trading is very dangerous. Why? Because people feel कि यार मैंने तो इतनी पढ़ाई की थी फिर भी I lost money, which means पढ़ाई वर्क नहीं करता है. You got it ना? So that is why again and again I stress कि trading with a strategy is the best chance to make money in options, because that is defined by someone who understands options, and a lot of every element has been taken into account there. Now what is Vega? Last part. Vega. Amit, just one question. Like, agar if there is a negative impact of gamma, so will that also result in delta को push करेगा या उसको नीचे करेगा? Negative impact of gamma means what? Like gamma can only come increase delta. अगर गामा आया, if मतलब एक सिंपल से वर्ड में बोल रहा हूँ कि if the gamma component of an option increases, delta will also increase. Simple. और उसको प्रैक्टिकली मैंने कैसे बताया कि अगर गामा मूवमेंट है, सडन मूवमेंट आ रहा है, तो नॉर्मली जो ऑप्शन 0.5 से रेट बढ़ने वाला था वो अभी 0.6 0.7 से भाग रहा है. ऐसा समझ लो, उसकी स्पीड बढ़ा देता है. जो प्राइस जिस रफ्तार से भागेगी ना, गामा उसको इंक्रीज कर देता है. जितना सिवियर गामा उतना सिवियर इंक्रीमेंट इन डेल्टा. बट थीटा सडनली नहीं आता है, और ये समझ ध्यान में रखो. ऐसा नहीं होता कि बैठे बैठे एकदम थीटा बर्स्ट में आता है. उसको पता होता है कि पूरे दिन में मुझे कहाँ पे थीटा डिके होगा, और थीटा हमेशा डिके कब होता है मैक्सिमम. फॉर एग्जांपल मार्केट इज गोइंग थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, तो क्या हो रहा है, ये जो कॉल वाले ऑप्शन है वो या तो प्राइस को होल्ड करके बैठे हैं या थोड़ा बढ़ रहे हैं. ठीक है, अब मार्केट सडन नीचे आ गया तो वहां पे सबसे ज्यादा थीटा डिके होता है उस मोमेंट में. तो एट टाइम्स यू विल वेट, यार ये थीटा डिके, अमित ने तो इतना बताया था थीटा आएगा, कुछ आ नहीं रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? सो इट डज नॉट कम लाइक कि जब आप चाहोगे, वो अपने टाइम पे आता. बट जो कॉल में भी थीटा डिके होगा, पुट में भी होगा, बट वो हमेशा रिवर्सल्स में आता है. लाइक मार्केट इज गोइंग अप अप अप, बट सडनली इट कम्स डाउन, तो कॉल साइड में थीटा डिके हो जाता है. फिर मार्केट इज गोइंग डाउन डाउन डाउन, पुट इज होल्डिंग, ठीक है, और सडनली मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर पुट साइड में डिके है. तो ऐसे करके थ्रू आउट द डे समटाइम्स इट गोज अप, समटाइम्स इट गोज डाउन, और थोड़ा सा वो कॉल पे एक बार निकालेगा, थोड़ा सा पुट पे निकालेगा, फिर कॉल पे निकालेगा, और ऐसे कर करके पूरे दिन में उसको अपना टाइम वैल्यू किल करना होता है. यू गॉट इट? और वो ऐसा नहीं लीनियरली नहीं आता कि अच्छा यहाँ पे आएगा, यहाँ, ऐसा नहीं होता. वो कॉल में एक बार आएगा, पुट में एक बार आएगा. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर.
Okay, sometimes what happens, especially Friday and all, one side nothing is happening. एक और चीज होता है, ये फोर्थ कंपोनेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, IV, which we call as intrinsic volatility. So intrinsic volatility is directly related to India VIX. एक इंडिकेटर है, ठीक है, you can search it India VIX के बारे में. So VIX basically means volatility index. So volatility क्या होता है? It is an index to measure how volatile the market is. And volatile का मतलब ये होता है कि कितना रैंडम मूवमेंट दे रहा है बहुत फास्ट. एक है कि इट्स लाइक ह्यूमन मूड. एक आदमी एकदम शांत शांत है, तो वो उसको हम बोलते हैं ये वॉलेटाइल नहीं है, राइट ना, शांत आदमी है. और एक आदमी का अभी शांत है, एकदम से गाली गलौज कर रहा है, सामान तोड़ फोड़ रहा है, फिर शांत हो जाता है, तो व्हाट वुड यू कॉल दैट पर्सन? वॉलेटाइल. तो जो इंसान वॉलेटाइल होता है उससे दूरी बना के रखनी चाहिए कि नहीं? बिकॉज यू डोंट नो व्हाट ही विल डू टुडे, राइट? राइट. सो व्हेन गामा शूट अप हैपेंस, कॉल प्राइस भागेगा तो पुट गिरेगा ही ना, ऑब्वियसली, क्योंकि गामा ने मार्केट को ऊपर उठाया, तो पुट के साइड में इंट्रिंसिक वैल्यू भी लॉस होगा और थीटा भी लॉस होगा, तो ऑब्वियसली पुट विल कम डाउन ड्रास्टिकली. ठीक है, मतलब एक साइड में गामा आएगा तो दूसरी साइड में ज्यादा डिक्रीमेंट होगा. ठीक है. सो नाउ, तो इसको जो मेजरमेंट होता है ना वॉलेटिलिटी, क्योंकि मार्केट में ये भी एक चलेगा कि मार्केट कितना वॉलेटाइल है ना. वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि ये स्पॉट है, वो अपने स्पॉट से कितने स्ट्राइक को इधर भाग सकता है और वापस इधर भाग सकता है. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द मार्केट बिकॉज ऑफ न्यूज, बिकॉज ऑफ इवेंट्स. अभी कंफ्यूजन कब आता है? हम कब, देखो नॉर्मल टाइम पे हम सब अच्छे इंसान होते हैं, राइट ना, हम ऐसे बिहेव नहीं करते हैं. बट जब सडनली आपका कार को कोई ठोक देता है तो आप वॉलेटाइल हो जाते हो, रोड रैश हो जाता होता है ना. क्यों होता है? क्योंकि कोई इवेंट हुआ ना आपके इवेंट. नॉर्मली हम सब ठीक होते हैं, बट सडनली वी गेट टू नो कि हमारे फैमिली में कुछ हो गया, फिर हम हो जाते हैं ना वॉलेटाइल, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत नर्वस हो जाते हैं. होता है कि नहीं होता है? सडनली मान लो आपने कोई इंटरव्यू दिया है, फिर आपको क्या होता है, एकदम से घबराहट, बेचैनी, है ना, थोड़ा सा रेस्टलेसनेस आ जाता है. क्यों आता है? क्योंकि कोई इवेंट हुआ, करेक्ट. तो जैसे ह्यूमन बींग्स में इवेंट के आने से हमारे इमोशंस में चेंज आते हैं, वैसे स्टॉक मार्केट में भी जब भी कोई इवेंट होता है तो स्टॉक मार्केट का भी मूड चेंज होता है. इसको भी तो मेजर करना होगा ना प्राइसिंग में. ये कहलाता है वेगा. दिस इज कॉल्ड एज वेगा. तो अभी आपने क्या सुना, मतलब क्या चीज समझा? अच्छा, टाइम है एक एलिमेंट है सडन मोमेंटम है, राइट, जो चीजों को चेंज करता है. ये थर्ड एंगल है जो भी प्राइस को कंट्रोल करेगा, और इसे बोलते हैं नर्वसनेस. एंड दिस गिव्स राइज टू वोलेटिलिटी व्हेन कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत पता नहीं अब क्या होगा. सडनली अभी एक न्यूज आ गया कोविड में, सबकी हालत कैसी थी? ऑल ऑफ अस वेर नर्वस, पता नहीं हमको भी होगा, जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे. वेर वी द सेम पर्सन दैट वी आर नाउ ड्यूरिंग कोविड? रिमेंबर व्हेन द कोविड केम, वी वर नॉट. व्हाई? बिकॉज घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे, हस्बैंड वाइफ, है कि नहीं, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाहट, क्योंकि वॉलेटिलिटी शूट अप कर गया था. जैसे कोविड में लोगों का वॉलेटिलिटी शूट किया था, मार्केट का भी शूट कर गया था. इट वेंट टू 70, विच इज नाउ अराउंड 11-12. गॉट इट? तो क्या होता है, कंफ्यूजन. अभी पता नहीं होने वाला क्या है, अभी पता नहीं कि लॉकडाउन होगा तो इकोनॉमी बचेगी, देश बचेगा, कौन जिएगा, तो क्या होगा. मार्केट स्टार्ट बिहेविंग एवरीवेयर. तो सम डेज इट विल गो 1000-2000 पॉइंट अप, तो वो नॉर्मल से ज्यादा रिएक्ट करने लग जाता है. लाइक नॉर्मल डे अगर एवरेज मूवमेंट निफ्टी का 50 पॉइंट्स है, तो समटाइम्स इट विल स्टार्ट 300 पॉइंट्स मूवमेंट. कि today it is coming 300 point, मतलब some days it will be like market came down by 300 point and then again it went up by 300 point. Next day opening again market is going up 300 point, again going. What is this? Which means now market जो 50-50 point के रेंज में चल रहा था, अभी 300 जा रहा है. तो what has happened? Volatility has increased. Now when this will increase, there is an indicator called India VIX, India VIX बोलते हैं. वो ये बताता है कि वॉलेटिलिटी कितनी है. तो फॉर एग्जांपल दिस डेज वॉलेटिलिटी इज वेरी लो, इट इज अराउंड 11 और 10, राइट. लास्ट ईयर वॉलेटिलिटी वाज मोस्टली 13 to 16, 17, 18, and when Ukraine war came, that time it became 30 also. So trading in high volatility and trading in low volatility are not same, because जब volatility बढ़ती है ना, तो
ऑप्शंस के प्राइस दोनों तरफ बढ़ जाते हैं, बोथ द साइड्स। अभी तक हमने क्या सुना, अच्छा थीटा भी दोनों को इंपैक्ट करेगा, गामा एक को बढ़ाएगा तो दूसरा का प्राइस कम होगा, राइट? बट वेगा इज वन कंपोनेंट विच विल बेसिकली इंक्रीज द प्राइस ऑफ बोथ द साइड्स, because when market has become volatile, it can go 1000 here and 1000 there, which means the probability of market to move out from the spot to any strike is high। कि अभी वो 500 पॉइंट उधर भी जाएगा, तो जो दूर वाले भी स्ट्राइक हैं जहां पे प्राइस कम होना चाहिए, कायदे से उसको बढ़ना चाहिए ना प्राइस को, बिकॉज इट इज गोइंग देयर, गेटिंग द चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वहां जा सकती है। तो जब जा सकती तो प्राइस को भी तो जस्टिफाई करना होगा ना, and that is the reason what happens, premium start increasing। for example in volatility, अभी जो volatility है VIX, यहाँ पे क्या होता है, 100 point far you go ना, 200 point far go, price becomes 20-30 rupees। but same thing, let's say VIX is very high like 21-22 also, तो वो जो आपका 200 point far जो ऑप्शन है ना, वो जो अभी 30 रुपीज का, वो उस समय 200 रुपीज का रहेगा। और जो आपका 1000 पॉइंट दूर का ऑप्शन है ना, वो 20-30 पे बैठा होता है। नाउ टेल मी who will benefit more in this scenario, high volatility में, बायर और सेलर? बायर। सेलर, गलत जवाब। ओके। इन हाई वीक्स ऑलवेज सेलर आर बेटर, बिकॉज अभी सेलर को रिस्क ज्यादा है, वो 200 पॉइंट दूर पे सेल कर रहा है, राइट? बट ऐसा तो नहीं ना कि मार्केट ने कसम खा रखा कि मैं 200 पॉइंट नहीं जाऊंगा, वो तो कल खुलते 300 पॉइंट जा सकता है। तो व्हाट विल हैपन, सेलर जिसने छोटा सा प्रीमियम कलेक्ट किया 20 रुपीज का, नेक्स्ट मॉर्निंग ही विल गेट किल्ड। व्हाई? बिकॉज मार्केट 300 पॉइंट चला गया, तो 20 रुपीज बिकम 100। तो बायर के लिए हमेशा लो विक्स अच्छा होता है, रिमेंबर दैट, क्योंकि लो विक्स में आपके पास खोने को कम है, you are not going to lose much, premiums are very less। but in high wick scenario your premiums are very high। तो आप 1000 पॉइंट दूर का जो टिकट ले रहे हो, वो 30 रुपीज आप पे कर रहे हो, जिसके जाने की प्रोबेबिलिटी वैसे थ्योरेटिकल है, बट ऐसे हो नहीं, मतलब हर दिन नहीं जाएगा मार्केट। तो सम डेज लेट से मार्केट जस्ट 100 पॉइंट 200 पॉइंट पे रह जाएगा, तो क्या होगा, जो दूर का ऑप्शन था वो तो बहुत जल्दी जीरो बन जाता है ना। तो सेलर विल मेक लॉट ऑफ मनी। तो आप देखना है, ऑप्शन सेलर्स अभी के मार्केट में स्ट्रगल्स कर रहे हैं इस ईयर, अदर देन अस, बिकॉज हमारी स्ट्रेटेजी कुछ अलग है, कुछ अलग डिजाइन किया। बट नॉर्मली एवरीवन हु यूज्ड टू सेल ऑप्शन, people make lot of money, every Tom, Dick and Harry ना made lot of money in last 2-3 years when VIX was high। तो वो क्या करते थे, दूर का ऑप्शन बेच के बैठ जाते थे, सेलिंग में पैसा बनता था। now all of those people are struggling। it depends on what strategy you are trading, because अभी क्या होता है, लो विक्स में दूर में प्रीमियम ही नहीं, आप बेच के लोगे क्या, प्राइस ही नहीं है ना, तो आप बेचोगे किसको? तो यू हैव टू कम नियर, एंड इन नियर व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग एंड कैरिंग टुमारो, मार्केट ओपन्स 100 पॉइंट 200 पॉइंट अप एंड यू गेट किल्ड। ये पोजिशनल वालों को ज्यादा परेशान करता है। इंट्राडे में भी क्या होता है कि स्मॉल मूवमेंट विल टेक योर स्टॉप लॉस, क्योंकि अब जब आप अगर मान लो व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग एट 300 रुपीज, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वन सिनेरियो योर ऑप्शन इज 100 रुपीज, ओके, सेम स्ट्राइक 100 पॉइंट अवे। another scenario you are selling 300 rupees, same strike, और let's say our stop loss is 30 rupees, तो 100 का स्टॉप लॉस कितना बनेगा, 130, और 300 का स्टॉप लॉस कितना बनेगा, 390, करेक्ट? तो यहां पे 30 पॉइंट पे स्टॉप लॉस हिट होगा, वहां पे 90 पॉइंट पे हिट होगा, गॉट इट? तो विच मीन्स स्मॉलेस्ट ऑफ मूवमेंट इन द मार्केट, और अगर थोड़ा गामा आ गया तो स्टॉप लॉस तो हिट होगा आपका, विच मीन्स इन लो वीक्स frequent stop loss will get hit इधर साइड। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो लॉस ही होगा ना। तो विघ्नेश, that is the reason why you are not making money from whatever you learned। Yes, You got it? yes, But sir. same thing, if you try in high weeks, maybe it will work। But as a strategist, as a designer, we have to understand all these things, what I am going to do, what will work in what situation। So that is why I keep saying, someone who says, okay, I've done trading, someone who says, I have understood option, believe me, it is not so easy। One needs to trade in all kind of environment, literally आपको तब समझ में आता options क्या होता है। Because last year, for example, when I was trading, I had traded only in high weeks। कोविड के बाद विक्स हमेशा, बट दिस ईयर फर्स्ट टाइम फ्रॉम लास्ट ईयर नवंबर विक्स बिकेम सडनली 11-12। सो द स्ट्रेटेजी विच आई यूज्ड टू ट्रेड लास्ट ईयर,
I rejected it outright in January only because I understood this year market will go up, it will remain this volatility, कोई event है नहीं, अभी ऐसे ही रहेगा. तो I need to find something which will work in low weeks also. That is how we came up with this strategy, and that is why I moved out from Bank Nifty to Fin Nifty, because then I have to see which, where I'm getting maximum premium, which day. So a lot of things are there. So that is why I say, if you have knowledge, you can design a lot of things, you can understand, right? And it comes with experience. So इस component को बोलते हैं Vega. So the Vega component is also, now Vega will increase always on news. कोई बड़ा event होगा ना, जैसे अभी general election आएगा, VIX will increase. Budget day होगा, VIX will increase. Just before 2-3 before ना budget, VIX starts increasing. ठीक है, तो विक्स इंक्रीज करता है. कभी भी फेडरल रिजर्व वाले कुछ अनाउंस करते हैं, कुछ वहां पे आएगा, विक्स विल इंक्रीज. कोई बड़ा न्यूज आ जाए, लेमन ब्रदर्स चला गया, विक्स विल इंक्रीज. कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, विक्स विल इंक्रीज. एनी सच थिंग, कोई बड़ा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मर गया, विक्स विल इंक्रीज. Because some event has happened, you don't know what is going to happen. So whenever there will be state of confusion, VIX will. And what will happen when VIX increases, volatility increases, the premiums will increase. So that is the best chance for buyer to make. For example, you are buying something at VIX 11, both side call put, and tomorrow suddenly VIX becomes 16. You will be rich because market किधर भी जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, both side options are increasing, and that is the time option selling should be avoided strictly. When VIX is increasing, it has already increased. अब वहां से गिरेगा तो option selling is best. But VIX अभी increase कर रहा है. Why? Because some event has happened. We should not trade that time. अगर सेलिंग कर रहे हैं तो बैठ जाना चाहिए, कुछ दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए. बिकॉज वाई? क्योंकि मुझे फायदा ही नहीं होगा. मैं कॉल बेचूंगा, पुट बेचूंगा, दोनों भागने वाले हैं. व्हाट इज द पॉइंट इन सेलिंग ऑप्शन? रादर बाय कर लो, पैसा बनेगा. ओके. So Amit, as you said, like VIX is a volatility index, राइट. and that is a country specific volatility index. तो कई बार हम ऐसा भी सिनेरियो देखते हैं जब निफ्टी नेगेटिव होता है और बैंक निफ्टी पॉजिटिव होता है. और नहीं any of वो them- नहीं, एक मिनट, ये इसमें क्या होता है ना, बैंक निफ्टी नेगेटिव, निफ्टी पॉजिटिव. सी इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव पॉजिटिव. समटाइम्स विक्स आल्सो इंक्रीज इन पॉजिटिव केस आल्सो. जब सी विक्स इज ऑल अबाउट वॉलेटिलिटी, एज आई से. वॉलेटिलिटी मींस मूवमेंट ऑफ पॉइंट्स. So let's say if Nifty goes up suddenly by 300-400 points, VIX will increase. Because then what the anticipation is कि big movements are happening. VIX means big movements. Now whether big movement is happening this side or downside, because मैंने कहा ना event पे depend करता है. अब event जरूरी नहीं negative, कई बार event अच्छा news भी लेके आएगा, like general elections. तो general elections जब होगा तो वो कोई negative event नहीं है. It can be a very positive event, but there is some element of uncertainty. जब अनसर्टेनिटी होगा, कंफ्यूजन होगा. कंफ्यूजन होगा तो इधर साइड मूवमेंट हो सकता है. सो इट कैन हैव पॉजिटिव साइड आल्सो, वहां पे भी विक्स बढ़ सकता है. नंबर 1, राइट. और नंबर 2, जो ये विक्स होता है ना, लाइक बैंक निफ्टी नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, वो टेम्पररी हो सकता है. बट यू वुड हैव सीन कि लॉन्ग रन में दोनों एक दूसरे को फिर फॉलो करने लग जाते हैं. Yeah, the reason of asking this was like हर इंस्ट्रूमेंट पे वो इक्वली इम्पैक्ट करना हाँ, चाहिए हर जैसे लगता इंस्ट्रूमेंट है. में. और ये विक्स कोई इंडेक्स स्पेसिफिक नहीं होता कि बैंक निफ्टी का विक्स अलग होता है. विक्स इज इंडिया विक्स, और ये कैलकुलेट होता है मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो पोजीशंस बनते हैं उसके बेसिस पे कि यू नो व्हाट काइंड ऑफ बिड एंड आस्क प्राइस इज बीइंग प्लेस्ड. तो जब वॉलेटिलिटी बढ़ता है तो बिड और आस्क प्राइस के बीच का डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है, विच लीड्स टू इंक्रीमेंट इन विक्स. अदरवाइज बिड एंड आस्क विल बी वेरी लेस, तो विक्स विल कम. और ये मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स के प्राइस पे होता है, नॉट ऑन वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स. एंड विक्स इज नॉट निफ्टी का अलग विक्स है, बैंक निफ्टी का अलग. नो, विक्स इज इंडिया विक्स. इट्स अ सिंगल थिंग. सो देयर इज अ वीडियो ऑन इंडिया विक्स which I have explained in detail. Maybe you can watch it, right? If you go to that PDF, first module the link is about India VIX, how India VIX impacts. तो उसमें मैंने VIX का आपको ग्राफ भी दिखाया हुआ है, कोविड में कैसे बढ़ा था. तो that is very good video, you can watch that. ठीक है? Done. Thanks. So this was all about option Greeks. ठीक है? One ये- question. हाँ. ये जो वेगा का आपने बताया, राइट, इंक्रीज, तो वी शुड होल्ड और सेल नहीं करना चाहिए, राइट? तो इसमें फिर ये थीटा वाला कंपोनेंट भी इम्पेक्ट करता है क्या? करता है. देखो थीटा जो है वो है, अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज थीटा तो ठीक है वो घटेगा, बट वेगा जो है वो बहुत बढ़ रहा है और वेगा डेल्टा को बढ़ा रहा है.
हाँ करेक्ट। तो उसके वजह से ऑप्शन की प्राइस बढ़ रही है, मतलब ऑल्दो मार्केट इज फॉलिंग, बट आप देखोगे कि कॉल भी बढ़ रहा है, पुट भी बढ़ रहा है। एंड समटाइम्स व्हाट आई हैव सीन, जो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑन सम डे आई हैव सोल्ड अ कॉल ऑप्शन, आई हैव सोल्ड अ पुट ऑप्शन 100 रुपीज, ठीक है, एंड सडनली मार्केट स्टार्ट्स फॉलिंग। तो क्या हो रहा है कि जो पुट वाला 100 है वो 120, 130, 140, 150, 160, 170 जा रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से कॉल को भी तो गिरना चाहिए, बिकॉज उल्टा है ना। बट कॉल विल बी एट 100 to 90, 10 पॉइंट्स खाली जा रहा है, और वो भाग रहा है। क्यों? क्योंकि वो 100 to 90 जा रहा है, बिकॉज थोड़ा बहुत थीटा का और इंटरनल इंट्रिंसिक हो रहा है। लेकिन दोनों ऑप्शन में ना वेगा ऐड हो रहा है, तो वेगा ऐड होने की वजह से पुट साइड में गामा भी ऐड हो रहा है, वेगा भी ऐड हो रहा है, डेल्टा भाग रहा है, वो बहुत तेजी से भाग रहा है। इस तरफ में भी वेगा भी ऐड हो रहा है, थीटा कम हो रहा है, लेकिन जितना थीटा कम हो रहा है वेगा ज्यादा उसको बढ़ा रहा है। दैट इज वाई द प्राइस इज नॉट डिक्रीजिंग। और वो हो क्या रहा है, मैंने दोनों को सेल किया हुआ है, एक तरफ ब्रेक इवन बैठा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा, और दूसरी तरफ लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। आई यूज्ड टू लूज लॉट ऑफ मनी, एंड दिस हैपेंड व्हेन इन रशिया यूक्रेन वॉर न्यूज एंड ऑल केम। तो विक्स वाज इंक्रीजिंग, दैट टाइम मुझे इतना नहीं आइडिया था, बट देन व्हेन दिस हैपेंड आई एनालाइज्ड कि व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, देन आई अंडरस्टूड ओके दिस इज द थिंग। जब ऐसा होगा तो कभी भी तो मैं तो उससे अच्छा बाय कर लेता, एंड बिलीव उसके बाद इन अदर डे आई रिमेम्बर आई बॉट, जहां पे मुझे लग रहा था आज ये न्यूज है ना, बजट डे के पहले 2 दिन पहले व्हाट आई डिड, आई बॉट बोथ साइड ऑप्शन, कॉल पुट दबा के ले लिया कि कोई तो जाएगा ही, एंड आई नो कि अभी विक्स बढ़ेगा। तो उसमें क्या हुआ, जो मेरा एक साइड लूजिंग साइड था वहां पे लॉस बहुत कम हुआ, और एक साइड का प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया, बिकॉज वेगा वाज इंक्रीजिंग, प्राइस बढ़ गया। तो दिस सिंपल अंडरस्टैंडिंग विल मेक यू अर्न मनी इन द मार्केट। अदरवाइज मैं क्या करता, मैं तो हमेशा सेल ही करूंगा, नहीं मैं तो ऑप्शन सेलर हूँ, सेल ही करूंगा, कर लो सेल। वैसे नहीं होता है। एंड व्हेन यू हैव सीन कि सफिशिएंट हो गया ना, फिर एक राइट टाइम पे एंट्री करता है। मैंने क्या कहा, जब विक्स बढ़ जाता है, एक ड्रास्टिकली बढ़ गया ना, अब आप सेल करना शुरू करो, क्योंकि वहां से फिर वो डिक्रीज करता है। तो इन दिस ग्रुप व्हाट इज माय एक्सपर्टाइज ना, आई विल टेल यू ऑल दिस थिंग इन लाइव मार्केट। कब आपको ट्रेड नहीं लेना है, कब आपको अभी ये भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा, आप ये भी कर लो। तो वो आपको क्या होता है ना, एक बर्ड आई व्यू मिलता है फॉर समवन हु हैज ट्रेडेड इन डिफरेंट मार्केट। क्योंकि आप तो नए हो, आपने तो सीखा है, आपको क्या पता अभी कब विक्स बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो मैं अभी सिखा रहा हूँ, आप इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लाइव मार्केट में किसी दिन देखोगे, एंड दैट डे आई विल टेल यू, रिमेंबर आई टोल्ड यू दिस, सी टुडे दिस हैज एक्चुअली हैपेंड। तो ये होता है फन लर्निंग का। ओके ओके, सो आई थिंक इनफ। सो ऑप्शंस मैंने आपको प्राइसिंग भी बता दिया, कंपोनेंट भी बता दिया। नाउ व्हाट आई वुड सजेस्ट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड ट्रेड। तो आप अपने पेपर ट्रेडिंग, आई होप आप देख रहे हो, मैंने आपको जितना हो सकता था बता दिया है, समझा दिया है। सो नाउ यू हैव टू मैप एक्सेल टू दैट, एंड व्हाट आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि स्टार्ट रियल ट्रेडिंग, डू नॉट वेट। अपना देखो, इंसान दो सूरत पे वेट करता है, आई विल टेल यू। कुछ लोग जजमेंटल होते हैं, वो सोचते हैं ना कि हम पहले इवेल्युएट करेंगे। एक चीज आप समझो, आपके इवेल्युएशन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना तो स्ट्रैटेजी पे पड़ेगा ना मार्केट पे पड़ेगा, राइट। सो दैट इज, बट ओनली थिंग कैन बी, आप उससे ज्यादा ये फोकस करो कि हाउ soon you can understand this thing, so that when you start trading you should not be impacted much with profit and loss. You understand one thing, it's a process, एक कुछ तो डिजाइन किया हुआ मेथड से, मैथमेटिकल है। आई हैव अंडरस्टूड इट, मैंने पास्ट का डेटा देखा, अब ट्रेड करके ही समझ में आएगा, ठीक है। पेपर ट्रेड में आपके इमोशंस नहीं आते होंगे, आप देखते भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से। आपका इमोशन तभी आएगा जब आप असली पैसा डालोगे, फिर आप देखते बैठोगे उसको, और तभी आप सीखने की कोशिश भी करोगे। So what I'm trying to say, when market is giving money, everyone is making money. Like if you've seen Play with Theta, people are there. People are making money. In between last week was our 3 to 4 days was strategy gave loss, but this week all 5 days big profits, 2%, 1.5%, 3%. That kind of profit we have got. So जब आप trade करते हो ना, that is when you develop this psychology. ठीक है। तो what I will suggest you, learning will keep happening. फोकस ऑन स्टार्टिंग द ट्रेड्स एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि देखो आपके ट्रेड करने से मैं आपसे कोई पैसा तो लेने वाला नहीं हूँ, आपको जो देना था दिया, बट आई एम थिंकिंग अबाउट यू, यू शुड स्टार्ट मेकिंग मनी। तो फैसिलिटेट द प्रोसेस। तो आई हैव गिवन यू द डीमैट अकाउंट लिंक, so all of you need to open the Trade Genie demat account. Use only the referral link which we have given. The reason is, when you open an account through that link, we have a direct contact in the broker where we can
we actually get support from them in all the things. So, and that is the confidence that we have in any scenario we have, because they will support us, because we have, there are so many subscribers. It's not like they are giving us any money or anything. They are only giving us support. We have that thing. I can call the CEO of Trade Genie. Because what is happening. Otherwise, if I go and trade in Zerodha, no one is going to answer my call also. Because 100 and 200 people is not making any impact to Zerodha, right? So we are looking for support. जहाँ पे भाई कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताओ हमको क्या प्रॉब्लम है. एंड ट्रेड जीनी गाइस हैव सपोर्टेड अस लाइक एनीथिंग, बिकॉज फॉर एग्जांपल व्हेन सेबी चेंज समथिंग, तो समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये सेबी क्या बोल रहा है. Because last month there was a circular that if through algo trading, if there will be a throttle limit and all that, so we could not understand, because that is for brokers. Now the Trade Genie guy, they called us and they explained us, because you guys are doing through algo, so what will happen if you are punching orders simultaneously for so many people, only certain orders will get clear, others will get fail. So we understood, okay. Then what we did, internally we had to redesign our code, and then we started placing the orders in slices. So पहले हम क्या करते थे, जैसे let's say all 20 of us are trading, तो at one shot for all of you, like नवीन का ट्रेड, हेमंत का ट्रेड, सबका एक साथ जा रहा है, करेक्ट. तो अभी सेबी ने क्या किया, वो एल्गो से अगर इस तरह के ऑर्डर आएंगे ना तो वो रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, एक लिमिट, एक पर सेकेंड में एक लिमिटेड ऑर्डर ले रहा है. तो अभी वो हमारे बहुत लोगों का क्या हुआ, फेल हुआ ऑर्डर. Some people said we got error and all. So we understood, we got support from them, and then they only suggested कि instead of punching orders simultaneously, you do in slices. फिर हमें समझना पड़ता है कि how we can adapt this thing in our code. वो समझा और फिर उसका हमने सॉल्यूशन निकाला और फिर हमने रीडिप्लॉय किया, इवन आप लोगों के लिए भी. अब वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा, सी वी हैव सॉर्टेड दैट. तो डोंट थिंक कि यू विल गेट अ स्ट्रैटेजी और आप ना जिंदगी भर ट्रेड कर लोगे, बिकॉज इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड. देयर विल बी सो मेनी थिंग्स व्हिच विल कीप कमिंग अप, व्हिच ओनली द पर्सन हु अंडरस्टैंड कैन ओनली हेल्प यू. एंड दैट इज द रीजन आई एम स्टिल सपोर्टिंग पीपल हु आर देयर विथ मी फ्रॉम अक्टूबर. मैं ऐसा नहीं कि दे के छोड़ देता हूँ. आई गो एंड टेल देम वॉट्स एनी प्रॉब्लम, because that is I understand, because my job is, if you have placed your faith in me, I will make you profitable through developing your mindset and through technically कोई भी चीज जो आप नहीं समझ पाओगे. So एक ही रिक्वेस्ट होगा, if you are with me in this group, do everything which I ask you to do. Don't judge. जज करने से आपका मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्या है वो क्या. आपका टाइम ही लॉस्ट होगा. 2 महीने बाद आप आके बोलोगे बॉस आप सही बोलते थे, क्योंकि एक चीज को समझो कि आपसे ज्यादा ट्रेडिंग किया है और इतने लोगों को ट्रेड करवा रहा हूं. बिकॉज जनरली व्हाट हैपेंस, यू कैन ट्रेड योरसेल्फ, एक आदमी, बट आप सोचो 100 पीपल आर ट्रेडिंग ना, आई एम टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो हैव दैट फेथ एंड जस्ट ट्रेड, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट. एंड जो पर्पस आपका उसको फुलफिल करो और लर्न करो, सीखो, समझो. कम एंड आस्क मी क्वेश्चन, आई विल गाइड यू टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी. ओके. लॉट ऑफ टाइम्स सी आई टेल यू फ्रैंकली, न्यू पीपल कम, जो मुझे जानते वो तो जानते, बट सम पीपल डोंट नो मी, सो दे विल जज कि ओ ये क्या है वो क्या है. अरे जब आपने पैसे दे दिए हैं, जब आप यहाँ पे आई गए हो, तो जज करने से कुछ नहीं होगा. कम एंड लर्न एंड जस्ट डू इट एंड मेक मनी. ठीक है. तो इफ एनी प्रॉब्लम टेल मी. मंजेश इज द कॉन्टैक्ट फॉर ट्रेड जीनी, राइट. सो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, ही विल सपोर्ट अस एंड ओपन योर अकाउंट, and then we get through the next process when you start trading. ठीक है. on paper trade आपने कर लिया है. I hope you have understood. जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ आपके मन में है तो come and ask me, clarify everything. ठीक है. So see you on Monday. Have a nice weekend. If you have any question, if you want to connect one-to-one with me, do let me know. Saturday, Sunday, आप अपना टाइम बता देना, मैं अपना टाइम देख लूंगा. We can connect so that if there is anything I can help you. Okay. And I will share the recording so that if you